Hello everyone, welcome to Science Math Point. Today's video is based upon your definite integration, okay? जो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी के ऊपर बेस कर रहा है, okay? So properties of definite integration, which is most important topic of the chapter integration. अगर एक बार प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो समझो डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया. So properties I will discuss here 3 properties. Okay, so you have to focus only what are maybe the property I will discuss here and how to prove that property I will also prove here, no problem. लेकिन प्रॉपर्टी याद होना बहुत जरूरी. याद होने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर अप्लाई करना नहीं है तो क्या होगा प्रॉपर्टी याद रख के नहीं. सो इसलिए प्रॉपर्टी याद रखो, उसके साथ व्हेन एंड वेयर वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वी विल स्टडी हियर विथ some concept. Okay, so let's start. Now we will start the definition of properties of definite integration. Okay, so properties of definite क्या क्या है we will discuss briefly in this video. Okay, so properties of definite integration, most important properties, definite integration. Okay, so what are the properties we will discuss briefly here. Properties of definite integration. So पहला प्रॉपर्टी क्या है, इज गिवन दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, ओके, a to b f of x dx. ध्यान से सुनिए, a to b f of x dx अगर है तो we can write it integration of our a to b in place of x we can write upper limit plus lower limit, दोनों लिमिट को ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट वेरिएबल. तो इन प्लेस ऑफ x we can write a plus b minus x dx, we can write it. दोनों तरफ बराबर है. ओके, सो इन प्लेस ऑफ x what we can write just the addition of 2 limits and minus x, जो भी वेरिएबल है we can write it. अगर और अगर मेरा 0 to a है तो अगर मेरा लोअर लिमिट 0 है, क्योंकि मैक्सिमम केस वी विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस 0 to a, 0 to 1, 0 to 2, 0 to pi by 2. ओके, अगर ऐसा है तो 0 to a f of x dx अगर है तो वी कैन राइट डायरेक्टली क्या होगा, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करने से क्या होगा, सिंपली a plus 0 a ही होगा. तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ x a minus x dx, है कि नहीं. a plus 0 a होगा and minus variable, so f of a minus x dx we can write. Okay, so this is your first property of the definite integration, याद रखना है. अगर I am giving an example, suppose मेरे पास 1 to 4a 2x है dx, suppose I am telling, तो we can write it क्या, 1 to 4 2 into 1 plus 4 1 plus 4 minus x, we can write it also, no problem. 1 plus 4 minus x. अगर मेरे पास अगर ऐसा है तो 0 to pi by 2 sin square x dx. देखो ध्यान से 0 to pi by 2 sin square x dx अगर ऐसा है तो we can write it क्या, 0 to pi by 2 sin square in place of x we can write pi by 2 plus 0, तो pi by 2 minus x dx. We can write it, no problem. This is your first property is telling that in place of x just to put sum of 2 limits minus x. तो यहाँ पे 0 plus pi by 2 only pi by 2 minus. एक बात बताओ, sin pi by 2 minus क्या होगा, cos x होगा, cos square x होगा. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 to pi by 2 cos square x हो जाएगा, dx हो गया. सपोज अगर ये तुम्हारा i है तो let i equal to this क्वेश्चन, तो ये भी तुम्हारा i है. अगर ये i हो तो ये भी i होगा. तो i plus i, अगर when I will add i plus i मतलब क्या, this plus this क्या होगा, मतलब 2i हो गया. तो 0 to pi by 2 this
प्लस 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, प्लस 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो वेन विल ऐड दिस, क्योंकि बोथ लिमिट सेम है, तो 0 to पाई बाई 2 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वी कैन राइट इट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का प्रॉपर्टी, फर्स्ट पहला प्रॉपर्टी था। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, 1 डी एक्स। एंड उसके बाद पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है, तो एक्स लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2, तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, द फाइनल आंसर विल कम पाई बाई 2। सो वी कैन अप्लाई दैट दिस प्रॉपर्टी इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, याद रखो, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो anyhow I will prove why it is happening, so just up to that just to wait. Again I will write second property क्या है। ये तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी 2 second property is telling that, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी 1 हो गया। प्रॉपर्टी 2, अगर लिमिट मेरा -a to a है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत आसान होगा पहचानने के लिए, क्योंकि मेरा नेगेटिव सम कांस्टेंट टू पॉजिटिव दैट कांस्टेंट -2 to 2 माइनस पाई बाई 2 to प्लस पाई बाई 2 -4 to +4 माइनस पाई टू प्लस पाई, ये तुम्हारा लिमिट। अगर ऐसा है तो बहुत आसान होगा, देखोगे नेक्स्ट वाली। तो अगर ऐसा है तो वी कैन राइट क्या, दो केस आएगा। अगर मेरा फंक्शन इफ f of x is even, if f of x is even फंक्शन, ऑड फंक्शन तो पता है, if my f of x is even, तो इसका आंसर क्या होगा 2 into 0 to a f of x dx। अगर मेरा फंक्शन इवन है तो ये होगा, वेट आई विल टेल हियर, if my function is odd, if f of x is odd, मेरा आंसर क्या होगा डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, आई विल टेल बाय टेकिंग एग्जांपल। सपोज मेरे पास माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा, ये बात बताना है। तो देखो क्वेश्चन देखा, ये पता चल गया, ये तुम्हारा सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मेरा लिमिट -a to +a है। तो यहाँ पे चेक करना है जो भी फंक्शन गिवन है ये तुम्हारा इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन, दैट्स मेन पार्ट हियर। सो साइन एक्स तो पता है। अच्छा एक बात बताओ, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होगा। सो इवन फंक्शन तो पता है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये तुम्हारा इवन फंक्शन है। अगर मेरा एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आया तो वी कैन टेल इट इज योर ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। ओके, तो इवन फंक्शन सपोज आई विल टेल साइन एक्स तुम्हारा ऑड है क्या इवन है, ऑब्वियसली ये ऑड फंक्शन, क्योंकि ये तो अगर ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जस्ट विल पुट इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स पता है माइनस साइन एक्स व्हिच इज योर माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई साइन एक्स इज योर ऑड फंक्शन। तो अगर माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स का आंसर यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मेरा फंक्शन ऑड है। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड माई आंसर इज 0। प्रॉपर्टी टेलिंग, अगर मेरा फंक्शन इवन है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन cos x हो गया तो माइनस पाई बाई 2 to प्लस पाई बाई 2 cos x dx। cos x तो इवन पता है, क्योंकि cos ऑफ, अगर मेरा फंक्शन cos x है तो cos ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये तो पता है cos ऑफ माइनस थीटा, सिंपल cos थीटा, सिंपल cos थीटा, मतलब एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज कमिंग एफ ऑफ एक्स, मतलब इवन फंक्शन है। इवन के लिए मेरा क्या प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, अगर मेरा फंक्शन इवन हो गया तो 2 into 0 to a, यहाँ पे a क्या पाई बाई 2, 2 into 0 to पाई बाई 2 cos x dx, we can write it, that is property। ओके, उसके बाद पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। सो उसके बाद जस्ट टू पुट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 तो आउटसाइड है, cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा 0 to पाई बाई 2, तो 2 into पाई बाई 2 माइनस 2 into साइन पाई बाई 2 1 होगा,
माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, तो 2 into 1 आंसर आ जाएगा 2. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. हाउ कैन वी अप्लाई? ओके, अगेन आई विल टेल थर्ड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी पता चल गया. अगर मेरा फंक्शन इवन है तो क्या होगा, ऑड होने से क्या होगा. थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर, property 3. So third property is telling that अगर मेरा फंक्शन 0 to 2a f of x dx है, 0 to 2a f of x dx है, तो यस क्या होगा, 2 into 0 to a f of x dx होगा जब f of 2a minus x f of x आएगा. 0 होगा इफ f of 2a minus x अगर मेरा माइनस f of x आ गया. थोड़ा समझो, ये तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी है. क्या बोला, सेकेंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा कंपेयर करो. क्या है, सेम थिंग हियर, 2 into 0 to f of x dx कब होगा, जब f of 2a minus x, यहाँ पे 2 है, अपर लिमिट जो है दैट माइनस एक्स, अगर मेरा सेम फंक्शन आ गया तो ये तुम्हारा होगा 2 into 0 to f of x dx. अगर मेरा f of 2a minus x माइनस f of x आ गया तो ये तुम्हारा होगा 0 होगा. देखो, आई एम टेलिंग ए प्रॉपर्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. आई एम टेकिंग एग्जांपल. आई विल टेक एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है 0 to पाई, ध्यान सुनिए, 0 to पाई sin x dx, 0 to पाई sin x dx. देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करो. सो पहला प्रॉपर्टी तो पता है, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 3 बोथ आर इंटरलिंक. कीप इन माइंड वन थिंग आई एम टेलिंग हियर, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 3 इंटरलिंक. देखो क्या इंटरलिंक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 0 प्लस पाई पाई होगा, पाई माइनस एक्स होगा. एक बात बताओ, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या है, साइन एक्स से पता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया. यहाँ पे देखो एफ ऑफ 2a, यहाँ पे 2a कौन, पाई है. 0 to 2a, 0 to पाई, 0 to 2a मतलब 2a तुम्हारा क्या है, पाई है. तो फंक्शन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है, साइन एक्स. साइन एक्स क्या है तुम्हारा फंक्शन है. यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं, दैट्स राइट फर्स्ट कंडीशन. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस फंक्शन, मतलब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी. याद रखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन थर्ड प्रॉपर्टी. दैट्स आई एम टेलिंग द इंटरलिंक बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड. इंटरलिंक क्या है, क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई इन थर्ड प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड, ये तुम्हारा अप्लाई हो रहा है थर्ड प्रॉपर्टी में. उसके बाद अप्लाई करने के बाद, फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अगर मेरा फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो, मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर मेरा फंक्शन चेंज नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा, प्रॉपर्टी इज टेलिंग दैट 2 into 0 to a. देखो यहाँ पे 0 से 2a था, यहाँ पे 2 into 0 to a मतलब 2 into 0 to जितना भी लिमिट है उसका हाफ. 2a है तो मेरा a मतलब हाफ हो गया, 2a से हाफ मतलब डिवाइड 2. तो यहाँ पे पाई है, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा. फंक्शन इज सेम, साइन एक्स है तो साइन एक्स dx. वी कैन राइट इट. ओके, उसके बाद पता है साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा. आफ्टर दैट जस्ट यू पुट द वैल्यू. क्लियर. अगर मेरा क्वेश्चन ये हो गया cos 0 से पाई cos x dx, ध्यान से देखो 0 to पाई cos x dx. अगेन आई एम टेलिंग सेकेंड प्रॉपर्टी छोड़ के, सेकेंड प्रॉपर्टी तो ये तुम्हारा यूनिक प्रॉपर्टी है क्योंकि मेरा लिमिट माइनस है से प्लस है तक. सेकेंड प्रॉपर्टी छोड़ दो और जितना भी क्वेश्चन आ रहा है इन डेफिनेट इंटीग्रेशन ट्राई टू अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी. अगेन आई एम टेलिंग एवरीवेयर अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद एक बात चेक करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो यहाँ पे तो cos x इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट पाई माइनस एक्स. ओके, तो cos पाई माइनस एक्स क्या है, माइनस cos x. पता है माइनस cos x मतलब क्या है, ये माइनस f ऑफ x है क्योंकि फंक्शन हमारा cos x है. नेगेटिव f ऑफ x है. देखो यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर मेरा नेगेटिव f ऑफ x आ गया तो
आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट यू कैन राइट इट 0। 0 से पाई cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। अगेन आई एम टेलिंग, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अगर मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 2 into 0 to दैट हाफ एंगल, जो भी एंगल था उसका हाफ होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन चेंज हो गया, मतलब नेगेटिव दैट फंक्शन, नेगेटिव आ गया तो सेकेंड टाइप नेगेटिव आ गया तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, अगेन आई एम टेलिंग, ध्यान से द इंटरलिंक बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो ये तुम्हारा था 3 प्रॉपर्टीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज of definite integration. Clear? And 4 property that is not important, that's why in your some question है तुम्हारे बुक में according to 4th property I am telling you, just to keep in mind, that is not necessary to take serious. Okay, so property is there. If f is periodic function, if f is periodic with t, if f is periodic with t मतलब t में भी 1 2 3 जो भी होगा। अब अगर मेरा फंक्शन एक पीरियडिक है with t, then we can write 0 से nt, 0 to nt f of x dx, we can write n can be taken outside, 0 से t f of x dx। अगर मेरा फंक्शन एक पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड का फंक्शन मतलब पता चलता है साइन एक्स का ग्राफ पता है 0 90 से 1 होगा एंड पाई से 0 होगा। ओके, पाई अगेन ये 2 पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स इज पीरियडिक फंक्शन सब इंटरवल में। क्या साइन एक्स का पीरियडिक फंक्शन? देखो ये तुम्हारा एक पीरियड है। साइन एक्स इज पीरियडिक 0 से 2 पाई के अंदर। अगेन रिपीट होगा, अगेन एक ग्राफ रिपीट आएगा। पीरियडिक जहां से शुरू होता है यहाँ पे खत्म हो गया। एक पीरियडिक सर्कल है ना, सर्कल है, बात बताओ। 0 से अगेन 2 पाई, स्टार्टिंग 0 अगेन एंडिंग 0, मतलब 2 पाई कंप्लीट किया। सो 0 to 2 पाई ये तुम्हारा एक पीरियड है, 1 पीरियड। ओके, सो साइन एक्स इज द पीरियड ऑफ साइन इज 0 से 2 पाई, ये तुम्हारा पीरियड होता है। ओके, सो यू विल स्टडी अगेन इन योर ऑनर्स +3 ऑनर्स कोर्स ब्रीफली पीरियडिक फंक्शन क्या होता है। सो यहाँ पे थोड़ा याद रखें प्रॉपर्टी। अगर मेरा फंक्शन एक पीरियड है विथ टी मतलब क्या होगा? अगर मेरा क्वेश्चन 0 से nt है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो यू कैन राइट इट n इंटू दैट, n कैन आउटसाइड, n इंटू 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट इट। ओके, सो नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर नंबर 4। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है नंबर 1 2 3, just to focus on that 3 properties. Okay, so just to write it again I will prove. Okay, now we will prove here that 3 properties कैसा होगा। Okay, so proof number 1, proof। so number 1 is telling that integration over a to b f of x dx अगर है तो we can write it integration over same a to b, लेकिन in place of x we can write a plus b minus x dx। ऐसा क्यों होगा? ओके, देखो, let I am taking RHS part। ओके, let a plus b minus x, f के अंदर जो भी है, just to take t, a plus b minus x, suppose it is your t। ओके, सो डेरिवेटिव करो तो क्या होगा? a का 0 होगा, b का 0 होगा, x माइनस x का -1 होगा, तो माइनस dx ये हो जाएगा तुम्हारा dt। ये तो पता चल गया। ऑलरेडी हैव टोल्ड व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग अकॉर्डिंग टू दैट मेरा लिमिट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू a, मेरा t क्या होगा? a होने से a माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मेरा t b हो जाएगा। व्हेन माई x इज b, x इक्वल टू b, तो t क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। मतलब a के लिए b आ रहा है, b के लिए a आ रहा है। now integration over a to b f of a plus b minus x dx मतलब क्या आ रहा है? देखो, आई एम टेकिंग t हियर, a के लिए b आ रहा है,
बी के लिए ए आ रहा है एफ ऑफ टी डी एक्स तुम्हारा आ रहा है, डी एक्स तुम्हारा क्या आ रहा है माइनस डी टी। अगर माइनस डी एक्स से डी टी हो गया तो डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी होगा, ये हो गया। लेकिन एक बात याद रखो नेगेटिव है, सो व्हेन आई विल रिमूव नेगेटिव लिमिट चेंज हो जाएगा, बी टू ए है यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू बी, प्रॉपर्टी पता है ये भी, लिमिट चेंज होने से मेरा साइन चेंज होता है, नेगेटिव आ रहा है तो दैट नेगेटिव रिमूव्ड व्हेन आई एम चेंजिंग लिमिट। अगेन प्रॉपर्टी ये भी पता है वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब वी कैन राइट इट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऑलरेडी हैव टोल्ड ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड, वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। सो इन प्लेस ऑफ टी जस्ट आई एम पुटिंग एक्स, नो प्रॉब्लम। देखो ये तुम्हारा था लेफ्ट राइट साइड पार्ट, ये तुम्हारा आ गया लेफ्ट साइड पार्ट, प्रॉपर्टी बराबर हो गया, ये तुम्हारा प्रूव्ड। क्लियर, प्रॉपर्टी 1 प्रूव हो गया। अगेन आई विल प्रूव हियर प्रॉपर्टी 2। नंबर 2 प्रूफ, नंबर 2 क्या है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके ये तुम्हारा आ रहा है 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, इवन के लिए ये आ रहा है, ऑड के लिए 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड। ओके ऑड इवन का बात है यहाँ पे, माइनस ए से ए तक, मतलब माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बात बताओ कैन राइट इट माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड पार्ट। नाउ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी कैन राइट इट क्या माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नो प्रॉब्लम, माइनस ए एंड ए के बीच में कैन पुट एनी कांस्टेंट 0। क्लियर, ये भी प्रॉपर्टी पता है, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। ओके नाउ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, no I will not change, I will not change। okay I will see the first one क्या है माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो सकता है माइनस ए टू 0, नाउ माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का बात क्या है। ओके उसके बाद यू कैन राइट डायरेक्टली जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके माइनस ए टू 0, देखो टेक यहाँ पे टेक एक्स इक्वल टू माइनस टी, देखो प्रूव करना है, यहाँ पे जस्ट टेक एक्स इक्वल टू माइनस टी, यहाँ पे दिस इक्वल टू जस्ट आई एम टेकिंग टी, लेकिन यहाँ पे जस्ट आई एम टेकिंग माइनस टी, तो क्या होगा डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। ओके लेकिन लिमिट भी चेंज होगा, सो व्हेन x इक्वल टू माइनस ए, देखो ध्यान से व्हेन x इक्वल टू माइनस ए तुम्हारा t क्या हो जाएगा माइनस ए से a हो जाएगा। ओके व्हेन x इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे अपर लिमिट 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0 मेरा t भी 0 होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू a आ रहा है, अपर लिमिट का 0 आ रहा है, तो क्वेश्चन इज रेड्यूसेस टू a टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। अगर मैं माइनस डी टी हटा दूंगा तो क्या होगा लिमिट चेंज हो जाएगा, मतलब 0 से ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी, एफ ऑफ माइनस टी डी टी। क्लियर, नेगेटिव हट गया क्योंकि आई एम चेंजिंग लिमिट। वी कैन राइट बाई चेंजिंग वेरिएबल ऑल्सो, मतलब 0 से ए 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, नो प्रॉब्लम। okay now this equal to just in place of this we can write this, in place of this you can write this, मतलब minus a to, now again minus a to a f of x dx, मतलब क्या था minus a to 0 f of x dx प्लस 0 टू a f of x dx था। क्लियर, नाउ माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आया 0 टू ए
एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आ गया, प्लस ये तो है तुम्हारा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। देखो वी कैन ऐड इट क्योंकि लिमिट दोनों का सेम है, मतलब 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, क्लियर, डी एक्स आ गया इसका वैल्यू। अगर मेरा फंक्शन इवन होगा तो सो आई हैव नो स्पेस, काम करो फर्स्ट यू राइट इट देन आई विल प्रूव। ओके सो ये तुम्हारा हो गया, जस्ट आई विल इरेज। देखो इवन एंड ऑड का फंडामेंटल यहां पुट करना है, इवन एंड ऑड का फंडामेंटल। तो देखो ये तुम्हारा आ गया। नाउ व्हेन माइनस ए टू ए, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी इवन का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स हो गया तो ये तुम्हारा इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स हो गया तो ये तुम्हारा ऑड है, ये कॉन्सेप्ट है। नाउ देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आया, ये आया, मतलब 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आया। सो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, इफ एफ ऑफ एक्स इवन, तो एक बात बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब 0 to a एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, एंड एफ ऑफ एक्स तो है डी एक्स होगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 to a तुम्हारा माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स तो है डी एक्स, किसके लिए, इफ एफ इज ऑड के लिए। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 2 एफ ऑफ एक्स, तो 2 टेकन आउटसाइड, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज इवन, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 0 हो गया, मतलब ये 0 इफ एफ इज ऑड, क्लियर हो गया, प्रूव्ड। देखो मेरा जब फंक्शन ऑड है तो आंसर 0 आ रहा है, मेरा फंक्शन जब इवन हो रहा है तो ये तुम्हारा 2 into 0 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, क्लियर हो गया। सो ये तुम्हारा था सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ, क्लियर। सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट, नाउ वी विल प्रूव थर्ड प्रूफ क्या है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट इट 2 into 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होगा 0 होगा जब मेरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स होगा, ये तुम्हारा था प्रॉपर्टी थर्ड। देखो हाउ टू प्रूव इट, तो एक काम करो, लेफ्ट साइड पार्ट लेना है, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वी कैन स्प्लिट इट क्या, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a, नो प्रॉब्लम, a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट इट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा रहने दो, जस्ट आई विल सॉल्व हियर, a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, नाउ a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या होगा। सो आई विल टेक x इक्वल टू 2a माइनस टी, आई विल टेक x इक्वल टू 2a माइनस टी, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस करा है इसके ऊपर, ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग x इक्वल टू 2a माइनस टी। डेरिवेटिव करो क्या होगा, dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2a का 0 माइनस टी का माइनस डी टी होगा, सो dx इक्वल टू माइनस डी, लेकिन लिमिट चेंज करना है, सो व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट, मतलब व्हेन x इक्वल टू
ए, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, मेरा टी क्या होगा एक बात बताओ, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, टी यहाँ लेफ्ट हैंड लाओ तो माइनस टी प्लस टी हो जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, मेरा टी क्या होगा, ए होगा। व्हेन एक्स इक्वल टू 2a, मेरा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू 2a माइनस 0 हो गया। सो लोअर लिमिट ए आ गया, अपर लिमिट 0 आ गया। तो नाउ इट इज रेड्यूसेस टू 8 से 0, लोअर लिमिट इज 0 ए, अपर लिमिट 0, एफ ऑफ एक्स में एक्स प्लस में 2a माइनस टी, डी एक्स प्लस में माइनस डी टी। सो माइनस डी टी को पॉजिटिव करना है, मतलब लिमिट चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी हो जाएगा। नाउ जस्ट टू चेंज द वेरिएबल ऑल्सो, 0 टू a, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हो गया। नाउ जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज कमिंग दिस इन हियर, so hence I am writing here, better होगा, hence क्या 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आया, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a, ये आ गया इसका वैल्यू 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx, तुम्हारा ये वैल्यू आ गया। जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, ओके। लेकिन दोनों साइड का लिमिट तो सेम है, तो 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ओके। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है, जब मेरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, अगर ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 0 टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हो गया। सो कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, देयरफॉर 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर 2 इंटू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारा दिस का वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो गया तो एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स, 2 आउट आ गया। जब मेरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा, 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर। ये तुम्हारा हो गया प्रूव्ड, 3 प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर। लेकिन याद रखो 3 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, कैसा, सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखो, माइनस ए से प्लस ए तक, ये तुम्हारा यूनिक प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 3 इंटरलिंक्ड, दैट मीन्स प्रॉपर्टी 1 इज अप्लाइड इन प्रॉपर्टी 3, ओके। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मेरा फंक्शन अगर चेंज नहीं हुआ तो मतलब साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, तो क्या आंसर होगा, 2 इंटू 0 टू दैट हाफ एंगल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन चेंज हुआ मतलब नेगेटिव आ गया, जैसे कि कॉस एक्स था, 0 से पाई कॉस एक्स था, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, अगर मेरा फंक्शन नेगेटिव आ गया तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, बस इतना है, ओके। सो ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर्टी। नाउ विल सॉल्व 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ओके। सो आफ्टर दैट जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नाउ वी विल डू प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी 1। क्या है देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। सो एक बात याद रखो, इन एवरीवेयर जस्ट टू अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, एवरीवेयर। क्योंकि प्रॉपर्टी 2 तो ये तुम्हारा यूनिक प्रॉपर्टी है, सो प्रॉपर्टी 1 एवरीवेयर अप्लाई करना है। क्वेश्चन इज हियर, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाय 2 रूट ओवर साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, क्लियर, डी एक्स, क्लियर। सो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी 1 ही अप्लाई करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 तो नहीं होगा, क्योंकि लिमिट मेरा 0 से पाई बाय 2 तक है, ओके। प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करने के बाद थोड़ा सोचो क्या होगा आफ्टर अप्लाई प्रॉपर्टी 2, थोड़ा सोचो मन में क्या होगा। देखो एक बात बताओ, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि एक्स के प्लेस में क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि 0 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब जहां पर मेरा एक्स है इन फंक्शन इन एफ ऑफ एक्स, मेरा क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा, मतलब साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, ये बात है।
तो ये तुम्हारा रूट कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस होगा, ये साइन होगा। सो डिनोमिनेटर जो नॉट चेंज, ये कॉस साइन सेम ऐड है, साइन कॉस कॉस साइन सेम हो, लेकिन न्यूमरेटर क्या हो गया, कॉस हो गया। एक काम करना है, अगर ये तुम्हारा आई है, another i will come, i plus i 2y ऐड करने के बाद when I will taking LCM रूट साइन प्लस रूट कॉस एक्स एंड डिवाइड बाय रूट साइन प्लस रूट कॉस एक्स, कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा। देखो कैसे हो रहा है सॉल्यूशन। लेट i इक्वल टू, आई लेना है, लेट i इक्वल टू क्या है, 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर साइन ऑफ एक्स के प्लेस में पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टीज देखो क्या हो गया, ये तुम्हारा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये तुम्हारा कॉस हो गया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स पता है, डिवाइड बाई ये तुम्हारा कॉस हो गया, ये तुम्हारा साइन हो गया। ओके, नाउ जस्ट टू से दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तो ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है। नाउ 2y इक्वल टू ऐड करो, नाउ 2y इक्वल टू क्या है, दिस इज योर आई, दिस इज योर आई प्लस आई, दैट मीन्स वी कैन राइट इट 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये तुम्हारा आई है, प्लस ये भी तुम्हारा आई है, 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स। नाउ दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट तो सेम है, 0 से पाई बाय 2, सो 0 टू पाई बाय 2 व्हेन विल ऐड इट क्या होगा, बेस डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, रूट साइन प्लस रूट कॉस एक्स, मतलब ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स आफ्टर एडिंग दो फंक्शन। देखो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 होगा, 0 टू पाई बाय 2 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स है, लिमिट इज 0 से पाई बाय 2, आंसर क्या आया पाई बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाए पाई बाय 2, लेकिन अभी तक आंसर नहीं है क्योंकि मेरा 2i आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए i का आंसर चाहिए, तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाय 4, ये तुम्हारा हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आई एम राइटिंग है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस tan x dx, 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस tan x dx। प्रॉपर्टी अप्लाई करो, पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा कॉट हो जाएगा, इतना ही ये तुम्हारा कॉट एक्स हो जाएगा, 10 90 माइनस एक्स। कॉट होने के बाद ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्मेट, ये भी आएगा इसी तरह, कॉट मतलब कॉट आएगा, वी कैन राइट दैट कॉट 1 बाय 10 tan न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट विल बी अगेन 1 प्लस tan। देखो क्या होगा सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस tan x dx है, 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी 1, लेकिन ये क्या हो गया 0 से पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स हो गया, अगेन 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस कॉट मतलब 1 बाय tan x dx, 0 टू पाई बाय 2, ध्यान से देखो आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या होगा, tan x प्लस 1 न्यूमरेटर विल बी tan x, मतलब tan x बाय tan x प्लस 1 dx। अभी देखो एक हो गया सेटिंग, व्हेन विल ऐड दिस टू
आई प्लस आई 2y, डिनोमिनेटर पार्ट विल बी 1 + 10 1 + 10, न्यूमरेटर क्या होगा 1 + 10, कैंसिल हो जाएगा इसी तरह। ओके, नाउ 2i इक्वल टू, नाउ 2i इक्वल टू आई प्लस आई, 2i इक्वल टू आई प्लस आई, मतलब i का वैल्यू है 1, 0 से π/2, 1/1 प्लस tan x dx प्लस 0 से π/2 tan x प्लस 1 dx है। ओके, सो व्हेन यू ऐड दिस टू, क्योंकि लिमिट सेम है, यू कैन ऐड इट 0 to π/2 1 प्लस tan x बाई 1 प्लस tan x dx, सेम आंसर आएगा 0 से π/2 1 dx, इसका आंसर आएगा x, 0 से π/2 ये तुम्हारा आ गया π/2 माइनस 0, π/2 आएगा, π/2 माइनस 0 ये तुम्हारा आ गया π/2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, i चाहिए, सो देयरफॉर i इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा π/4, दोनों का आंसर बराबर है, सेम है, ये भी π/4, ये भी तुम्हारा π/4 है। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट, अगेन वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी 1। ओके, प्रॉपर्टी 2 भी सॉल्व करेंगे। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन 3 1 to 2 √x/√3 - x प्लस √x dx, क्या करना है पता है, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करो मतलब इन प्लेस ऑफ x व्हाट विल पुट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐड करो -x, मतलब x के प्लेस में क्या पुट होगा, 2 + 1 3 - x, क्या हो जाएगा ये 3 - x, पता चलेगा कैसे होगा 3 - x, यहाँ पे क्या होगा 3 - 3 - x, 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x आएगा, ये तुम्हारा होगा 3 - x। देखो सेम क्वेश्चन से एज लाइक क्वेश्चन 1 and 2 आई एम टेलिंग, खुद करो। ओके, नंबर 3 खुद करो, आंसर चेक करो, ये भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 to 2 1 dx, x आएगा, x मतलब 2 - 1 1 आएगा, तो y का वैल्यू सेम 1 ही आएगा आंसर शायद। ओके, चेक करो, दिस इज योर प्रॉपर्टी 1 के बेस कर क्वेश्चन है, यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। नाउ आई एम राइटिंग अनदर क्वेश्चंस regarding property 2. Question number 4 is that minus π/6 to plus π/6 sin cube x dx। देखो ये तुम्हारा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिट मेरा नेगेटिव दैट कांस्टेंट पॉजिटिव दैट कांस्टेंट है। प्रॉपर्टी 2 ये तो पता चल गया, देयर इज नो डाउट, प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी 2 क्या है, मेरा फंक्शन को चेक करना है, ये इवन है क्या ऑड है, अगर ऑड है तो बहुत आसान 0, अगर इवन है तो 2 into 0 to that, 2 into 0 to a, that's the main point here। तो पहले चेक करो ये जो फंक्शन गिवन है ऑड है क्या इवन है, हमें पता है sin x तुम्हारा ऑड है, sin x ऑड फंक्शन, cos x इवन फंक्शन, माइंड में सेट करो। sin x क्या है, ऑड है, क्योंकि sin ऑफ -x माइनस sin x होता है, cos ऑफ -x cos x, दैट्स व्हाई sin x में ऑड, cos x में इवन। लेकिन देखो sin x तो ऑड है, लेकिन sin क्यूब है, पावर ऑड है, ऑड का पावर, नेगेटिव का ऑड पावर, मतलब नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स ये तुम्हारा ऑड फंक्शन है। ओके, एनी हाउ टू राइट, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, -π/6 प्लस π/6 sin क्यूब x dx। सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से हियर विल राइट, हियर f ऑफ x क्या है, sin क्यूब x है। क्लियर? नाउ हमें चेक करना है f ऑफ -x लेके, f ऑफ -x का मतलब क्या, साइन ऑफ -x का होल क्यूब, साइन क्यू एक्स मतलब साइन एक्स का होल क्यूब, साइन ऑफ x के प्लेस में जस्ट पुट -x, हमें ये पता है साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x का पावर क्यूब, मतलब माइनस आउटसाइड आ जाएगा, माइनस साइन क्यूब x, मतलब माइनस साइन क्यूब x मतलब क्या, f ऑफ x माइनस f ऑफ x आ गया। देखो ध्यान से, हमारा f ऑफ -x क्या है, माइनस f ऑफ x, देयरफॉर f of x is odd function, f of x is odd function, so therefore minus π/6 to plus π/6 sin cube x dx का आंसर क्या होगा 0, बात खत्म। अगर ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आई एम सॉल्विंग हियर, -π/2 to plus minus सपोज π/4, -π/4 से प्लस π/4 cos क्यूब x dx, cos क्यूब x dx,
ऐसा भी हो सकता है। हमें ये पता है cos x जो इवन फंक्शन cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है। अगर cos x इवन हो तो cos स्क्वायर हो, cos क्यू, cos फोर्थ, cos फिफ्थ, जितना भी पावर हो, नो प्रॉब्लम, ये इवन ही होगा। ओके, लेकिन साइन का अगर ऑड पावर है तो ऑड होगा, इवन पावर हो तो इवन हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस से माइनस है नहीं सकता। लेकिन अगर ये पावर ऑड इवन हो गया तो स्क्वायर फोर्थ हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो उसके हिसाब से ये इवन हो जाएगा ऑन दैट सेंस व्हेन विल फेस साइन पावर इवन। अगर इवन हो गया तो 2 × 0 2 ये पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा cos क्यू एक्स इवन है। सो हाउ टू राइट, ये इवन कैसे होगा प्रूव करना है। तो क्वेश्चन इज गिवन दैट -π/4 से +π/4 cos क्यूब एक्स dx। Here f of x is given that cos क्यूब x, मतलब हमें f of माइनस एक्स चेक करना है। ये f of x अगर आ गया तो इवन होगा। f of माइनस एक्स का मतलब क्या, cos ऑफ माइनस एक्स का पावर होल क्यूब। cos ऑफ माइनस एक्स पता है cos x का क्यूब, मतलब cos क्यूब x ही आएगा। cos ऑफ माइनस एक्स cos x का पावर cos क्यूब x, जो कि तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा f of x है। cos क्यूब x क्या है, f of x है। f of माइनस एक्स आ गया f of x, देयरफॉर f of x इज क्या, इवन फंक्शन। ये तुम्हारा फंक्शन इज क्या, इवन। अगर फंक्शन इवन है तो वी कैन राइट देयरफॉर -π/4 to +π/4 cos क्यू एक्स dx, वी कैन राइट इट क्या, 2 × 0 to a 2 × 0 to π/4, बस इतना लिखना है। अगर इवन है तो 2 × 0 to अपर लिमिट 0 to π/4 cos क्यू एक्स dx। उसके बाद पता है इस लाइक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व करना है। cos क्यू एक्स का इंटीग्रेशन कैसा कर रहे थे हमें, याद करो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। cos क्यू एक्स का इंटीग्रेशन 1.4 शायद 1.5 फॉर्म पता है। और है तो एक फंक्शन आउट करना है। cos क्यू एक्स मतलब cos स्क्वायर इंटू cos करना है, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cos मतलब वी कैन राइट इट 2 × 0 से π/4 cos स्क्वायर इंटू cos करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इन इंडेफिनेट केस अगर cos क्यू है तो एक फंक्शन आउट करना है। अगेन cos स्क्वायर वी कैन राइट इट 1 - sin स्क्वायर, 2 × 0 से π/4 1 - sin स्क्वायर, ये cos x dx। उसके बाद t लेना है पता है, सो टेक sin x = t, मतलब cos x dx हो जाएगा dt। ओके, लेकिन लिमिट भी चेंज होगा इसके हिसाब से, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो when x = 0 मेरा t क्या हो जाएगा, sin 0 0। when x = π/4 मेरा t क्या होगा 1/√2, क्योंकि हमें पता है sin 45 1/√2 होता है। ओके, सो क्वेश्चन इज reduces to now 2 × 2 कांस्टेंट है 0 से 1/√2 क्या हो गया चेंज, 0 से 1/√2 1 - t² dt। उसके बाद पता है 1 - t का इंटीग्रेशन 1 का t होता है, ये t³ मतलब 1 का इंटीग्रेशन t होगा -t² का t³ आउटसाइड में 2 ऑलरेडी है, 0 से 1/√2 0 से 1/√2। ओके, नाउ जस्ट टू पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो क्या होगा देखो ध्यान से, 2 × अपर लिमिट पुट करने के बाद 1/√2 माइनस t³ मतलब 1/√2 × 1/√2 × 1/√2 क्या होगा 1/√2 3 टाइम्स 1/√2 1/√2 1/2√2 1/2√2/3 1/2√2/3 1/6√2 1/6√2 हो गया। ये तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 - 0 0 - 0। क्लियर, मतलब ये क्या हो गया 2 × ये तो 0 हो गया, छोड़ो -0। नाउ यू कैन राइट इट 2 × 1/√2 - 1/6। देखो एलसीएम ले जाओ, क्या होगा 1/√2 जस्ट विल टेक कॉमन 1/√2 जस्ट विल टेक कॉमन 1/√2 कॉमन गया तो क्या बचा 1 - 1/6 1/√2 कॉमन जाने के बाद क्या बचा 1 - 1/6। सो 2 × 1/√2 क्या होगा
सिंपल √2 होगा। 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा 5/6, मतलब आंसर आ गया 5√2/6। 5√2/6 ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जस्ट टू कीप इन माइंड, ये तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट नाउ, जस्ट टू सी द क्वेश्चंस गिवन दैट 0 से π/4 log 1 plus tan थीटा d थीटा। देखो अब तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया ऑल आर प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 बेस करके, लेकिन ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नंबर 7 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ स्टार्ट हियर फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? सो ध्यान रखें हाउ टू सॉल्व and with it deeply, just to understand what is the procedure and what are the steps I am using. So keep in mind one thing, okay? Most important questions. Now start here. Okay, so solution, let I equal to question, let I equal to 0 से π/4 log 1 plus tan थीटा d थीटा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये तो प्रॉपर्टी 2 नहीं, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करना है। जो भी है प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करो पहले। प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करने के बाद क्या होगा, थीटा के प्लेस में क्या पुट होगा 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, बस इतना ही। थोड़ा सॉल्व करो, 0 से π/4 log 1 प्लस, अभी बताओ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा मतलब tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, मतलब tan a मतलब tan π/4 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा हुआ कि नहीं? ओके, आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस b, जस्ट विल टेक एलसीएम, क्या होगा 0 से π/4 log, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा थोड़ा देखो, 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा d थीटा। तो थोड़ा सॉल्व करो, 0 से π/4 log tan थीटा कैंसिल, 2/1 प्लस tan थीटा, मतलब log ऑफ a/b मतलब क्या, log a माइनस log b, यू कैन राइट इट क्या 0 से π/4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan थीटा हो गया, log a माइनस log b आ गया। उसके बाद सेपरेट करो, स्प्लिट करो, 0 से π/4 log 2 d थीटा माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा क्या आई है कि नहीं, अगेन क्वेश्चन आ गया, ये तुम्हारा आई हो गया। log 2 एक कांस्टेंट है, वी कैन टेक आउटसाइड, तो क्या होगा log 2 इज योर आउटसाइड 0 से π/4 d थीटा माइनस ये तुम्हारा i। सो व्हेन आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, i है ये माइनस है प्लस है, 2i इक्वल टू ये क्या होगा d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, मतलब log 2 थीटा आ गया, थीटा लेकिन लिमिट क्या है 0 से π/4, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0, ओनली π/4 होगा। आफ्टर पुटिंग द लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 log 2 क्या आ गया π/4 log 2, लेकिन मुझे क्या ओनली i चाहिए, देयरफॉर आई विल राइट हियर i इक्वल टू π/8 log 2, दिस इज योर आंसर, π/8 हो जाएगा, π/8 log 2 इज तुम्हारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। अगेन देखो क्वेश्चन अगर ये भी हो सकता है क्या 0 से 1 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सपोज क्वेश्चन गिवन है, ओके। सो क्या करना है यहाँ पे देखो, ये भी ये है, कैसा हो देखो, व्हेन आई विल चूज x इक्वल टू tan थीटा, देखो ध्यान से, व्हेन आई विल चूज x इक्वल टू tan थीटा क्या होगा log 1 प्लस tan थीटा, ये तुम्हारा सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर हो जाएगा, dx से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो सो लेट i इक्वल टू 0 से 1 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, पुट x इक्वल टू tan थीटा,
मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ना, इसके हिसाब से लिमिट भी चेंज होगा। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो tan थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा क्या होगा, tan इनवर्स जीरो, जीरो ही होगा। व्हेन एक्स इक्वल टू वन, थीटा क्या हो जाएगा, वन, tan थीटा इक्वल टू वन, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर होगा। क्वेश्चन इज रिड्यूसेस टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस tan थीटा डिवाइड बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस tan थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ये भी तुम्हारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आफ्टर कैंसिलिंग सेक स्क्वायर क्या आएगा, क्वेश्चन इज जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस tan थीटा डी थीटा। उसके बाद एज यू सॉल्व, छोड़ना मत, एज यू सॉल्व एज लाइक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है ना। उसके बाद पता है अगेन प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करना है, tan पाई माइनस थीटा, ऐसे होगा, कंटिन्यू करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो थोड़ा, इंटीग्रेशन ओवर जीरो से पाई बाई टू लॉन साइन एक्स डी एक्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, स्पेशली जीरो से पाई बाई टू लॉन साइन एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा। देखो सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल टू क्वेश्चन जीरो से पाई बाई टू लॉन साइन एक्स डी एक्स। ये तो बात पता है, क्या करना है, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो क्या होगा यहाँ पे, जीरो से पाई बाई टू लॉन साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, तो जीरो से पाई बाई टू लॉन, ये कॉस एक्स हो गया, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। नाउ देखो अगेन आई विल, इफ आई विल अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स, साइन एक्स रिपीट हो जाएगा। क्लियर? सो स्टॉप हियर, क्या करना है अभी, नाउ दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, सो जस्ट टू ऐड इट। नाउ आई प्लस आई, नाउ आई प्लस आई मतलब क्या होगा, जीरो से पाई बाई टू लॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई टू लॉन कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या आएगा, जीरो से पाई बाई टू लॉन ए प्लस लॉन बी, मतलब लॉन साइन एक्स प्लस लॉन कॉस एक्स डी एक्स हो गया। नाउ लॉन ए प्लस लॉन बी मतलब क्या, लॉन ए बी, क्या, लॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, लॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अभी क्या करना है, एक काम करो, टू मल्टीप्लाई करो, टू डिवाइड करो, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा बाई टू। क्या करना अभी, जीरो से पाई बाई टू लॉन, कैन आई राइट साइन टू एक्स बाई टू, नो प्रॉब्लम, साइन टू एक्स बाई टू, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स बाई टू, बैलेंसिंग के लिए बाई टू क्या। अभी देखो लॉन ऑफ ए बाई बी, अगेन लॉन ए माइनस वन बी, जीरो से पाई बाई टू लॉन साइन टू एक्स डी एक्स माइनस जीरो से पाई बाई टू लॉन टू डी एक्स। डायरेक्टली आई हैव सेपरेटेड लॉन ए माइनस लॉन बी, लिमिट इज जीरो से पाई बाई टू, सेम है। नाउ अभी क्या करना है, जस्ट लॉन साइन टू एक्स को क्या लेना है, जस्ट विल टेक टू एक्स इक्वल टू 10, क्योंकि ये इसका तो इंटीग्रेशन पता है, लॉन टू कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होगा, आफ्टर टेकिंग कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, लॉन टू टेकिंग आउटसाइड, तो एक्स होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस जीरो इंटू लॉन टू, ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हियर। सो हियर जस्ट विल टेक टू एक्स इक्वल टू 10 फॉर दिस इंटीग्रेशन। So now, so here take 2x equal to t, क्या करना है,
याद रखो 2x इक्वल टू टी लेना है। अगर 2x इक्वल टू टी है तो क्या होगा, मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2dx इक्वल टू डी टी, ओके, और dx इक्वल टू डी टी बाई टू, ओके। उसके साथ लिमिट भी चेंज होगा। सो व्हेन x इक्वल टू 0 मेरा t इक्वल टू 0, व्हेन माई x इक्वल टू पाई बाई 2 मेरा t क्या हो जाएगा पाई होगा, 2 इंटू पाई बाई 2, 0 से पाई आ गया। नाउ क्वेश्चन इज reduces to, आई एम सॉल्विंग हियर, 0 से पाई ln sin t dt बाई 2। देखो ध्यान से, 0 से पाई लिमिट चेंज हो गया, 0 से पाई ln sin t dt बाई 2, dx तुम्हारा क्या आ जाएगा, dx क्या हो गया dt बाई 2, माइनस यहाँ पे देखो 0 से पाई बाई 2, ये तुम्हारा था ln 2, आई एम टेकिंग कांस्टेंट आउटसाइड, ओके, ln 2 आउटसाइड गया तो बचा क्या 0 से पाई बाई 2 सिंपल dx ही, ओके, ये हो जाएगा। अभी देखो dt बाई 2, 1 बाई 2 टेकिंग आउटसाइड, ओके, सो 0 से पाई ln sin t, 0 से पाई ln sin t dt, ये हो जाएगा तुम्हारा ln 2, लेकिन इंटीग्रेशन क्या आएगा x 0 से पाई बाई 2। अगेन क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करो। क्या करना है, प्रॉपर्टी, अगेन पहला प्रॉपर्टी अप्लाई करो। सो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, साइन टी, टी के प्लेस में क्या पुट करना है, पाई माइनस टी, लॉन साइन पाई माइनस टी आ गया। तो क्या होगा, साइन पाई माइनस टी साइन टी है, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है लॉन साइन टी। आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब याद करो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, अगर मेरा फंक्शन नहीं चेंज हो रहा है दैट मीन्स वी कैन राइट इट 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन नहीं चेंज हुआ तो, अगर चेंज हो गया तो 0 होगा, ओके, दैट इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी 3 व्हेन आई विल अप्लाई प्रॉपर्टी 1 इन प्रॉपर्टी 3। आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 1 माई फंक्शन इज नो चेंज, दैट मीन्स वी कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर हाफ इंटू 2, 0 से पाई बाई 2 होगा। देखो ध्यान से, हाफ तो था लेकिन अभी मैं क्या किया 2 इंटू 0 टू हाफ एंगल 2 ए था, सो एंगल हाफ होगा, ओके, सो पाई था पाई बाई 2 हो गया लॉन साइन टी डी टी। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0, ये लॉन 2 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया तो, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स हो गया तो मेरा लिमिट क्या होगा 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यू कैन राइट इट 2 इंटू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल अप्लाई हियर, बस इतना है, ओके। नाउ देखो ध्यान से, 2 कैंसिल हो गया, हाफ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0 से पाई बाई 2 लॉन साइन टी डी टी, लॉन साइन टी डी टी, माइनस अभी ये क्या आया माइनस पाई बाई 2 लॉन 2। नाउ थोड़ा देखो, दिस इज योर क्वेश्चन और नॉट, बट वेरिएबल चेंज करना है, प्रॉपर्टी ये भी पता है वेरिएबल चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, we can write it minus pi by 2 ln 2। ये तुम्हारा क्या हो गया i हो गया, i माइनस पाई बाई 2 ln 2, ये तुम्हारा i है, क्वेश्चन है। नाउ क्या है 2i इक्वल टू दिस, और इम्प्लाइज दैट 2i माइनस i क्या आ गया माइनस पाई बाई 2 ln 2, मतलब मेरा क्या चाहिए, मुझे i चाहिए, 2i माइनस i, आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉन 2, आंसर खत्म। 0 से पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स डीएक्स का आंसर क्या आ रहा है माइनस पाई बाई 2 लॉन 2, याद रखो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यू कैन राइट इफ आई वांट टू रिमूव माइनस साइन, क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर -1 होगा एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, और यू कैन राइट इट पाई बाई 2 लॉन 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 मतलब क्या होगा पाई बाई 2 लॉन हाफ, pi by 2 ln half, we can write this or this as your wish, okay, pi by 2 ln half, this is your answer
ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखो आंसर क्या रहा है, i = -π/2 ln 2। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of the definite integration. This question, special this question will be applied in more questions also. I will solve after this question, जो कि तुम्हारा ln sin x dx 0 से π/2 ये अप्लाई होगा इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर वी विल अप्लाई दिस क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट राइट इट फर्स्ट। नाउ देखो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, 0 से पाई x ln sin x dx। क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इन नंबर 9 दिस इज क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग नोट इट। ओके, 0 से π/2 ln sin x dx का आंसर क्या है, -π/2 ln 2। याद रखो क्योंकि दिस क्वेश्चन विल अप्लाई सम मोर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डिफरेंट है, 0 से पाई है, लिमिट चेंज हो गया, 0 से π/2 था, 0 से पाई हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, x है, x इंटू ln sin x। सो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इन एवरी क्वेश्चन आई विल अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यूनिक थे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई x ln sin x dx। क्या करना है, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करो, 0 से पाई इन प्लेस ऑफ x विल पुट पाई माइनस x, पाई माइनस x ln sin पाई माइनस x dx। नाउ जस्ट स्प्लिट क्या होगा, पाई इंटू ln दिस माइनस x इंटू पाई ln, ये क्या हो जाएगा, एक काम करो, ln पाई माइनस x तो है, ln sin पाई माइनस x क्या है, ln sin x है, ln sin x है, sin पाई माइनस x sin x है। अगेन सेपरेट करो, क्या होगा, पाई इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस, मतलब 0 से पाई ln sin x dx माइनस अगेन 0 से पाई x ln sin x dx, है कि नहीं, वी कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा आई है, क्वेश्चन है, देखो नाउ 0 पाई टेकिंग आउटसाइड क्योंकि कांस्टेंट है, पाई टेकिंग आउटसाइड 0 से पाई ln sin x dx माइनस आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे i प्लस आई हो जाएगा। ओके, जो कि तुम्हारा पाई इंटू 0 से पाई ln sin x dx। ओके, सो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 2i आ गया, मतलब पाई इंटू, एक बात बताओ, अगेन अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने बाद मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, ln sin पाई माइनस एक्स, पाई है ना, तो x के प्लेस में क्या होगा, पाई माइनस एक्स, लेकिन ln sin पाई माइनस एक्स, अगेन सेम फंक्शन इज कमिंग, जो कि तुम्हारा ln sin x है। अगर मेरा फंक्शन नहीं चेंज हो रहा है, मतलब क्या होगा, वी कैन राइट इट 2 इंटू 0 टू हाफ, जो भी एंगल है उसका हाफ, 0 से π/2 सेम फंक्शन ln sin x dx अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3। आई एम अप्लाइंग हियर प्रॉपर्टी 3। ओके, प्रॉपर्टी 3 में क्या है, अगर मेरा फंक्शन अप्लाइंग 2a माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स, सो ln sin पाई माइनस एक्स, ln sin x आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज नो चेंजिंग। ओके, दैट मीन्स 2 इंटू 0 टू हाफ ln sin x dx। ओके, तो उसके बाद ये क्या हो गया, 2i इक्वल टू, ये तुम्हारा 2 पाई आउटसाइड में हो गया, लेकिन देखो उसके बाद देखो 0 से π/2 ln sin x dx, लेकिन एग्जाम में डोंट पुट द वैल्यू -π/2 ln 2, उसके बाद कंटिन्यू करना है, यू विल सॉल्व इन योर कॉपी। आफ्टर दिस व्हाट आई एम प्रोसीजर आई एम फॉलोइंग इन योर क्वेश्चन नंबर 9, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन यू विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9 में जितना भी सॉल्यूशन था, अगेन 1 2 3 4 5 6 स्टेप ऐड हो गया, दैट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हो गया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दिस क्वेश्चन विल बी यूज्ड इन मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो 2 पाई है, इसका आंसर क्या है, -π/2 ln 2, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग डोंट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन डायरेक्टली इन एग्जाम में ये नहीं करना है, यू विल सॉल्व आफ्टर अपनी प्रॉपर्टी क्या होगा, π/2 ln cos x होगा, अगेन ऐड इट। ओके, ये एक काम करना है, जस्ट विल टेक i1,
जस्ट विल टेक I1, उसको सेपरेट सॉल्व करो, क्या आ रहा है आफ्टर गेटिंग द वैल्यू -5/2 ln 2 you will apply, you will put here. That's what I am suggesting to all. Okay, so डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना है एग्जाम में, यू विल सॉल्व एज लाइक क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रखो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, -5/2 ln 2। देखो थोड़ा कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये तुम्हारा 2 कैंसिल, ओके, -π² ln 2, -π² ln 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, देयरफॉर I इक्वल टू -π²/2 ln 2, -π²/2 ln 2। अगर इफ आई विल टेक माइनस आउटसाइड, क्या हो जाएगा, π²/2 ln हाफ हो जाएगा, का पावर -1, तो ln हाफ हो जाएगा, π²/2 ln हाफ। ये तुम्हारा हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हो गया। अगेन आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अप्लाइड इन all questions. Okay, so just to write it now, just to share this these two questions again, question number 9 will apply in these two questions. देखो कैसे अप्लाई होगा। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू क्वेश्चन क्या है 0 से 1 ln x बाई √1 - x² dx। ओके, ना अभी क्या करना है, पुट x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, जो भी, इफ आई विल टेक x इक्वल टू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 - sin² का रूट कॉस हो जाएगा, दैट्स वाई टेक x इक्वल टू सपोज साइन थीटा, तो डेरिवेटिव क्या होगा, ये dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, उसके हिसाब से लिमिट भी चेंज होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0, व्हेन x इक्वल टू 1 मेरा थीटा क्या होगा, 1 मतलब साइन थीटा इक्वल 1 मतलब थीटा π/2 होगा ऑब्वियसली। लिमिट क्या हो गया अभी, I इक्वल टू 0 से π/2 ln साइन x, क्योंकि ln साइन थीटा नॉट x, ln इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग साइन थीटा, डिवाइड बाई √1 - sin² थीटा, dx का वैल्यू आ गया cos थीटा डी थीटा। क्लियर, नाउ दिस इज योर 0 से π/2 ln साइन थीटा होल डिवाइड बाई, ये तुम्हारा cos थीटा हो गया, √1 - sin² थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। देखो cos थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 0 से π/2 ln साइन थीटा डी थीटा। सो थीटा वो वेरिएबल चेंज करो, नो प्रॉब्लम, x वी कैन राइट इट 0 से π/2 ln साइन x dx। देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, जो कि उसका वैल्यू है, सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 9 विल गेट -π/2 ln 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू क्वेश्चन 0 से π/2 ln tan x प्लस cot x dx। सो क्या करना है, 0 से π/2 ln, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन x बाई कॉस x प्लस कॉस x बाई साइन x। ओके, थोड़ा एलसीएम ले जाओ, सो 0 से π/2 ln क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट विल बी sin² x प्लस cos² x बाई cos x इंटू साइन x dx। ओके, अगेन sin² x प्लस cos² x क्या होगा, 1 हो गया, 0 से π/2 ln 1 बाई साइन x इंटू कॉस x dx। क्लियर, ये हो गया। देन वी कैन राइट इट, थोड़ा ध्यान दो, ln वी कैन राइट इट क्या, साइन x का होल पावर -1 इंटू कॉस x का होल पावर -1, वी कैन राइट इट नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई कॉस, 1 बाई साइन मतलब साइन एक्स का पावर होल पावर 1 है -1, 1 बाई कॉस मतलब कॉस एक्स टू होल टू द पावर -1, नो प्रॉब्लम। नाउ ln ए बी मतलब ln ए प्लस ln बी, वी कैन स्प्लिट इट ऑल्सो, 0 से π/2 ln
साइन एक्स का होल पावर -1 dx लॉन ए प्लस होगा प्लस अगेन 0 से π/2 लॉन cos x का होल पावर -1 dx. We can write it. Now this power can be taken outside प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉगरिथम माइनस आउटसाइड आ गया 0 से π/2 लॉन साइन एक्स dx. यहाँ पे भी माइनस टेकिंग आउटसाइड 0 से π/2 लॉन cos x dx. हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? लॉन 0 से π/2 लॉन साइन एक्स लाना चाहिए. देखो यहाँ पे 0 से π/2 लॉन cos x है. अगेन अप्लाई फर्स्ट प्रॉपर्टी. आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी cos π/2 माइनस एक्स विल बी साइन एक्स. ओके, तो क्या हो जाएगी माइनस 0 से π/2 लॉन साइन एक्स dx माइनस इट कैन रिटर्न एज 0 से π/2 लॉन साइन एक्स, क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी. ना देखो ये क्या हो गया माइनस दिस -2 इंटू दिस -2 इंटू 0 से π/2 लॉन साइन एक्स dx हो गया. क्लियर? 0 से π/2 लॉन साइन एक्स dx, क्योंकि दो इंटीग्रेशन आ गया, सेम दो इंटीग्रेशन. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग -2 0 से π/2 लॉन साइन एक्स dx. उसके बाद -2 इंटू उसका वैल्यू क्या है -π/2 लॉन 2. ये तो पता है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 अगेन. सो इन दिस सेंस यू विल टेक इट इज I1. क्या लेना है? I1 लेना है. उसके बाद सेपरेट सॉल्व करना है इन एग्जाम. ओके, सो दिस विल कम अगेन. सो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कैंसिल हो गया. तो मेरा आंसर आ गया पाई लॉन 2. मेरा आंसर क्या आ गया पाई लॉन 2. क्लियर? सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, दैट्स आई एम टेलिंग क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10 में यूज हुआ, 11 में यूज हुआ, 12 में यूज होगा. क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. ये तुम्हारा डिफरेंट क्वेश्चन अभी आ गया. क्या? 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx. 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx. ये तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है क्वेश्चन. क्या कहना है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर. लेट i इक्वल टू 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx है. सो नो प्रॉब्लम. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट साइन, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx है कि नहीं? 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx. क्लियर? उसके बाद सेपरेट करो 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर dx. तो 0 से पाई ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया तुम्हारा सेक इंटू टेन, क्योंकि साइन बाई कॉस 10 होगा 1 बाई कॉस सेक होगा सेक इंटू टेन एक्स dx. उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स सेक इंटू टेन का सेक एक्स. लिमिट है तुम्हारा 0 से पाई. बस बहुत आसान क्वेश्चन है ना. जस्ट टू पुट द वैल्यू अपर लिमिट पे पुट करो, मतलब टेन पाई माइनस सेक पाई ये तुम्हारा अपर लिमिट माइनस टेन 0 माइनस सेक 0. टेन पाई कितना 0, टेन एन पाई 0 होता है, टेन पाई 0 माइनस सेक पाई कितना. अगर सेक पाई पता नहीं है तो कॉस पाई याद करो. कॉस पाई क्या है -1, क्योंकि सेक पाई इक्वल टू 1 बाई कॉस पाई 1 बाई -1 मतलब -1. सेक पाई इज ऑल्सो -1. ओके, माइनस टेन 0 0 माइनस सेक 0 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि cos 0 1 मतलब सेक 0 मतलब 1 बाई cos 0 1 बाई 1 1. तो अभी क्या हो गया ये तुम्हारा 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2. वेरी सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? ये तुम्हारा अलग टाइप का क्वेश्चन है. सिमिलर नंबर 14 क्या है? सपोज सेम क्वेश्चन 0 से पाई, लेकिन क्या है x/1 प्लस साइन एक्स x/1 प्लस साइन एक्स. सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे
न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, x है, सो यू हैव टू रिमूव इट. सो हाउ टू रिमूव इट? आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो लेट i इक्वल टू क्वेश्चन है 0 से पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है. तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये क्या होगा? आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी x के प्लेस में क्या होगा? पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स. ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट इट 0 से पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स, है कि नहीं? क्योंकि साइन पाई माइनस है, साइन एक्स होगा. पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. क्लियर? नाउ जस्ट सेपरेट इट. सेपरेट करने के बाद क्या होगा? पाई टेकन आउटसाइड, 0 से पाई 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स होगा. देखो ये तुम्हारा क्या है? अगेन एक तुम्हारा क्वेश्चन है, दैट मीन्स इट इज आई. दैट मीन्स पाई इंटू 0 से पाई 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई. सो आफ्टर टेकिंग लेफ्ट साइड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू पाई इंटू 0 से. ये तो पता है हाउ टू सॉल्व, बिकॉज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. यू टू सॉल्व एज लाइक दैट 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एज यू सॉल्व यू विल कंटिन्यू, डोंट राइट डायरेक्टली, एज यू सॉल्व आज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, 13 के हिसाब से. सो आंसर क्या होगा? पाई तो है, लेकिन उसका आंसर क्या है? 2 है या 2 पाई. 2y इक्वल टू 2 पाई. दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए? आई चाहिए, तो आई क्या होगा? ओनली पाई. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस टू क्वेश्चन अगेन यूनिक क्वेश्चन है. ओके, ये तुम्हारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है. ओके, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट. अगेन जस्ट टू सी द क्वेश्चन नंबर 15. ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. पहले लेट i इक्वल टू, क्वेश्चन इज गिवन दैट 0 से पाई x tan x बाई sec x प्लस tan x dx. ओके, सो क्या करना है? पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो. फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या होगा? इन प्लेस ऑफ x जस्ट पुट पाई माइनस x, tan पाई माइनस x बाय sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x dx. देखो अभी क्या हो गया? 0 से पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स. थोड़ा सोचो, पाई माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, पाई माइनस एक्स विच क्वाड्रेंट? पाई सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल पाई माइनस एक्स, ये तुम्हारा पाई से कम है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा tan sec बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव कॉमन जाने के बाद नेगेटिविटी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी ऑल आर पॉजिटिव. tan x बाई sec x प्लस tan x, क्योंकि tan पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan x. sec पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस sec x. ये भी तुम्हारा माइनस tan x, माइनस sec माइनस tan, माइनस टेकिंग आउटसाइड, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट इज दिस dx. उसके बाद सेपरेट करो, ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा? पाई tan x बाई sec x प्लस tan x dx माइनस 0 से पाई x tan x, अगेन x tan x बाई sec x प्लस tan x dx. नाउ देखो, दिस इज योर क्वेश्चन अगेन, दिस इज योर आई. नाउ पाई टेकिंग आउटसाइड, 0 से पाई tan x. एक काम करो, यहाँ पे ऑपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, इजी होगा, क्योंकि sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई करो sec x माइनस tan x, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होगा, पता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, मतलब tan x इंटू sec x माइनस tan x बाई, ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर पार्ट sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x dx. ये तुम्हारा i है, तो दिस आई टेकिंग लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? 2y
2y इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर पार्ट हट गया। तो अभी क्या होगा, टेन इंटू सेक, मतलब सेक इंटू टेन माइनस टेन इंटू टेन, मतलब टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अभी दिस है टेकिंग लेफ्ट साइड, 2y हो गया पाई इंटू दिस। नाउ सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन पता है, सेक एक्स आएगा, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता नहीं है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट इट सेक स्क्वायर माइनस 1, ओके। दैट मीन्स पाई इंटू, देखो थोड़ा, 0 से पाई सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई टैन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट इट क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखो ब्रैकेट देना है, क्योंकि पाई इज मल्टीप्लाई टोटली, पाई इंटू अभी पता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन है सेक एक्स, लिमिट इज 0 से पाई, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस 1 का एक्स, मतलब टैन एक्स माइनस एक्स, लिमिट इज 0 से पाई, टोटल ब्रैकेट। थोड़ा वैल्यू पुट करो, क्या होगा, पाई इंटू सेक पाई माइनस सेक 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस टैन पाई माइनस पाई, अपर लिमिट माइनस टैन 0 माइनस 0, ये तुम्हारा लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थोड़ा देखो ध्यान से, गलती मत करो, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेक पाई क्या होता है, कॉस पाई माइनस 1, मतलब सेक पाई माइनस 1, सेक 0 इज लाइक कॉस 0 1, सेक 0 1 माइनस 1 पाई इंटू माइनस 1 माइनस टैन पाई 0 माइनस पाई, क्या आ गया, 0 माइनस पाई, ओके, माइनस टैन 0 0 हो गया, ये तुम्हारा माइनस 0, ओके। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, 2i इक्वल टू, ये चल रहा है 2i इक्वल टू दिस, मतलब पाई इंटू ये तुम्हारा माइनस 2, ये तुम्हारा माइनस ऑफ माइनस, मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस पाई, ओके, पाई इंटू माइनस 2 प्लस पाई, मतलब मेरा i क्या होगा, पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2, क्लियर, पाई बाई 2, ये तुम्हारा माइनस 2 प्लस में मतलब क्या, पाई माइनस 2, ओके, ये तुम्हारा हो गया आंसर। और इफ यू मल्टीप्लाई दिस विल गेट, क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा, ये तुम्हारा हो गया आंसर, क्लियर। सो दिस इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। सो देखो, इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव कवर्ड 15 number of questions which is most important question of your definite integration according to your properties, okay. So anyhow, this is your last part video of the chapter integration, okay. So next video lecture we will start new chapter, application of integration, okay. Anyhow, if you enjoy this video, just to like and share, also subscribe my channel to get more update on the video. So up to that, I am keeping, take care, bye bye.